A very good morning class. Myself Dr. Keshav. Today I am going to teach you about the introduction of pharmacology. So what is pharmacology? Pharmacology is a science of drug and their interaction with our body. It has basically two main divisions, pharmacokinetics and pharmacodynamics. So what is pharmacokinetics? Pharmacokinetics simply means what the body does to the drug. तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है? बॉडी एब्जॉर्ब द ड्रग, इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट ऑर्गन, then it metabolizes the drug and ultimately excrete it out. Okay, so there are four components of pharmacokinetics. Four components are ADME, that is absorption, distribution, metabolism and excretion. Okay, now what is pharmacodynamics? Pharmacodynamics simply means what the drug does to the body. तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है? ड्रग एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड डू इट एक्शन, ओके, एट सम सेलुलर और सब सेलुलर लेवल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है एड्रेनालिन का. एड्रेनालिन हमारे बॉडी के अंदर एड्रेनो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, जो कि एक तरह का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. ओके, जीपीसीआर है. तो एड्रेनालिन रिसेप्टर से बाइंड करता है. बाइंड करने के बाद सेल के अंदर एक चेंज आता है. ओके, चेंज ये आता है कि सेल के अंदर एड्रेनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट हो जाते हैं. एड्रेनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होने से सेल के अंदर साइक्लिक एमपी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. ओके, और साइक्लिक एमपी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रेस्पॉन्स आता है. रेस्पॉन्स किस तरह आएगा? कार्डियक स्टिमुलेशन होगा, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा एंड हाइपरग्लाइसीमिया होगा. सो फार्माकोडायनेमिक बेसिकली इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. Now one question for you, what is not the part of pharmacokinetics? Option A, entry of orally administered drug paracetamol into total blood. Option B, transport of paracetamol by systemic circulation to hypothalamus. Action of paracetamol in hypothalamus to subside fever. और ऑप्शन डी, इनएक्टिवेशन ऑफ पैरासीटामोल इन लीवर. तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? Coming to option A. Option A is entry of orally administered drug into blood. So it is absorption. Option B is transport of paracetamol by systemic circulation to hypothalamus. So it is distribution. Option C, action of paracetamol. So it is action of paracetamol in hypothalamus. Maybe some receptor involve हो सकता है और फीवर सबसाइड हो रहा है. तो एक्शन हो रहा, इफेक्ट हो रहा और रेस्पॉन्स हो रहा. सो इट इज नॉट द फार्माकोकाइनेटिक, इट इज द फार्माकोडायनामिक्स. Option D, inactivation of paracetamol in liver. It is metabolism. So option A is absorption, B is distribution, and D is the metabolism. A, B, D are the part of pharmacokinetic. Okay. So option C is not the pharmacokinetics. Option C is pharmacodynamics. So answer is option C. Right. Now drug. What is drug? As per WHO, although drug has been variously defined, so many definitions are there, okay, but most accepted definition of drug was given by WHO, and as per WHO, drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological state for the benefit of recipient. So यहाँ ये कह सकते हैं कि ड्रग या तो सब्सटेंस और प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करता है या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करता है. राइट, यानी कि ये डिजीज स्टेट को चेंज करता है और इसके साथ साथ ये फिजियोलॉजी को भी चेंज करता है. कहने का ये मतलब कि ये डिजीज पर्सन को भी दे सकते हैं एज वेल एज हेल्दी सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं. क्या हम ड्रग हेल्दी सब्जेक्ट को देते हैं? कैन एनीबॉडी थिंक अबाउट इट? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. ओके, now coming to pharmacotherapy. What is pharmacotherapy? Pharmacotherapy simply means it is use of drug for the treatment of disease. Okay, not only treatment, also for diagnosis purpose. Okay, now coming to another question, can you tell me the name of few drugs which act by simply modifying the physiology? यहाँ पर disease condition नहीं है,
हेल्दी सब्जेक्ट से क्या वहाँ पे हम ड्रग दे सकते हैं? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, क्या दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। कौन सा ड्रग? कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हम डिजीज पर्सन को देते हैं? नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम हेल्दी सब्जेक्ट को देते हैं टू अचीव द कॉन्ट्रासेप्स। सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ drug which can be given to the healthy subject. Now coming to the chemotherapy. What is chemotherapy? Chemotherapy is use of drug to treat systemic infection or kill the malignant cells. Okay. तो यहाँ पे हम जो ड्रग यूज करते हैं either to treat the infection or to kill the malignant cells. Okay. Now what is pharmacy? Pharmacy is art and science of compounding and dispensing drug or preparing suitable dosage for administration of drug to man or animals. So basically pharmacy ड्रग बनाने और डिस्पेंस करने की प्रक्रिया है। Now coming to drug nomenclature. ड्रग के कितने नाम हो सकते हैं? कितने तरह के नाम हो सकते हैं? ड्रग के 3 तरह के नाम हो सकते हैं: केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, ब्रांडेड नेम। केमिकल नेम एज द नेम सजेस्ट, इट इज व्हाट द ड्रग केमिकली इज। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन जो डिस्पिरिन है, हम मार्केट में जानते हैं अवेलेबल है, हर घर में यूज होता है डिस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बट केमिकल नेम को याद रखना, प्रेस्क्राइब करना मुश्किल है, तो हम प्रेस्क्रिप्शन में केमिकल नेम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट इज अ नॉन प्रोप्राइटरी और जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम इज असाइंड बाय सम कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में जो है उसने दिया यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम दैट इज उसान, और जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसने दिया ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम बैन। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन इज जेनेरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम। केमिकल नेम क्या था? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन इज जेनेरिक नेम। ओके, जेनेरिक नेम इजी है, इसको हम प्रेस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ओके, करंटली रिकमेंडेशन यही है कि हम प्रेस्क्रिप्शन में जेनेरिक नेम लिखें। ओके, जेनेरिक नेम का रिकमेंडेशन ये है कि जो डिफरेंट कंट्री है सब के लिए जब भी कोई ड्रग लॉन्च होता है तो जो जेनेरिक नेम असाइन होता है किसी भी ड्रग के लिए, तो ऐसा रिकमेंडेशन है कि सभी कंट्री में जेनेरिक नेम सेम रहेंगे। ओके, ऑल्दो पहले ऐसा नहीं हो पाया था, पहले बहुत सारे ऐसे ड्रग थे, जैसे अमेरिका में कुछ और नाम है, ब्रिटेन में कुछ और नाम है। ठीक है, सेम ड्रग का अलग अलग जेनेरिक नेम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया मेप्रिडिन, पैथिडिन का, वो सेम ड्रग है, अलग अलग नाम। लिडोकेन, लिग्नोकेन, सेम ड्रग है, अलग अलग नाम। तो पहले ऐसा होता था, बट अब ये रिकमेंडेशन है कि जेनेरिक नेम को यूनिफॉर्म रखना, सारे कंट्री के लिए सेम रखना। थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी और ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या? इट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चर। जिस कंपनी ने इस ड्रग को पहली बार लॉन्च किया वो इसका नाम देते हैं। तो पहली बार अगर कोई न्यू ड्रग लॉन्च होता है तो उसके जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो नाम देते हैं, और वो अपना पेटेंट उसके लिए पेटेंट ले लेते हैं, जो कि अराउंड 20 ईयर्स के लिए रहता है। तो उस समय केवल ब्रांड नेम वही दे सकते हैं। ओके, मैन्युफैक्चर। लेकिन बाद में जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो दवा और दूसरी कंपनी भी बना सकते हैं, और दूसरी कंपनी भी उसका अलग ब्रांड नेम रख सकते हैं। तो इनिशियली जो कंपनी दवा लॉन्च किया है वो अपना ब्रांड नेम रखते हैं, लेकिन बाद में पेटेंट एक्सपायर होने के बाद उसी दवा का बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं। ओके, ब्रांड नेम के लिए ये चीज ध्यान रखा जाता है कि ब्रांड नेम शुड बी कैची, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर एंड ऑफन सजेस्टिव। इसका ये मतलब हुआ कि हम प्रेस्क्राइब जब करेंगे तो हमको याद रखना, लिखना आसान हो। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है लो प्रेशर का। लो प्रेशर क्या? ये इट इज ब्रांड नेम ऑफ मेटोप्रोलॉल। ओके, और ये सजेस्ट करता है लो प्रेशर मीन्स कि इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, सो इट इज यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन। अभी तक हमने डिस्कस किया केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डिस्प्रिन इज ब्रांड नेम, देन एस्पिरिन इज जेनेरिक नेम, एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज chemical name. Okay, now coming to the source of drug information.
तो ड्रग के बारे में कि ड्रग का क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, ड्रग का क्या जेनेरिक नाम है, ड्रग का क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है, क्या फार्माकोडायनामिक्स है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या इंडिकेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है। इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर फार्माकोपिया। फार्माकोपिया is basically a book which contains name of approved drug with their physical and chemical characteristic. डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग फार्माकोपिया होते हैं। इंडियन स्टेट जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ओके, बीपी। नेशनल फार्माकोपिया के अलावा नेशनल फार्मुलरी होते हैं, मार्टिनडेल होते हैं, ये सारे ड्रग का इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। फिजिशियन डेस्क इंफॉर्मेशन हो सकता है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवैल्यूएशन हो सकता है, टेक्स्ट बुक हो सकता है, जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स हो सकता है, ड्रग बुलेटिन हो सकता है, डेटाबेस लाइक मैक्रोमिडेक्स, मेडलाइन, कोकोरेन लाइब्रेरी, इट इज, ये सारे जो है सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन है। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ ड्रग। ड्रग हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ट्रेडिशनली पहले हम लोग ड्रग जो ऑब्टेन करते थे नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, और धीरे धीरे ड्रग हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हो गए, ओके। करेंटली हमारे पास हम जो है ड्रग खुद सिंथेसाइज करते हैं। बहुत सारे ड्रग हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या होगा? प्लांट्स के अंदर अल्केलवाइड्स जैसे कि मॉर्फिन, एट्रोपिन, क्विनिन, रिसरपिन, एफेड्रिन, ये सब हम प्लांट से ऑब्टेन किए हैं। ग्लाइकोसाइड्स लाइक डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये भी हमने प्लांट से ऑब्टेन किया है। एनिमल इंसुलिन हमने एनिमल से ऑब्टेन किया, लाइक पोर्क इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन, ये सारे हमने एनिमल से ऑब्टेन किया है। ऑल्दो अभी हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन भी अवेलेबल, तो एनिमल इंसुलिन अभी उतना यूज नहीं होता। मिनरल्स से भी हमने ड्रग ऑब्टेन किया, लाइक फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमने मिनरल से ऑब्टेन किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमने बहुत सारे ड्रग, पर्टिकुलरली एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स, हमने बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया है, लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रिजियोफल्विन। नो सेमी सिंथेटिक सोर्स क्या है? सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड देन इट इज मॉडिफाइड। तो नेचुरल सोर्स हमने ऑब्टेन कर लिया, फिर हम कोई केमिकल इसको मॉडिफाई कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक, लाइक हाइड्रोमॉर्फोन, हाइड्रोकोडोन, ओके। नो सिंथेटिक सोर्स अभी तो मोस्टली जो ड्रग ऑब्टेन हो रहा है वो सिंथेटिक सोर्स से हो रहा है, वो हम बना रहे हैं। व्हाट आर द सिंथेटिक ड्रग्स? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, कोट्राइमेक्साजोल, क्लोरोक्विन, एटसेट्रा, ये सारे जो है सिंथेटिक ड्रग्स हैं। और हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे ड्रग जो हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से अभी बना रहे हैं, लाइक ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स। Another question for you, can you tell me the name of few drugs which are prepared by recombinant DNA technology? तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, और भी बहुत सारे ड्रग है जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, ओके। Human insulin is for diabetes, human growth factor for pituitary dwarfism, interferon for many cancers, tissue plasminogen activator, okay, used for myocardial infarction, factor 8 हम हीमोफीलिया के लिए यूज करते हैं, एथ्रोपोइटिन सीकेडी पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट में यूज करते हैं, ओके। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी, और भी वैक्सीन है जो हम ऑब्टेन करते हैं बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, राइट। Now, concept of essential medicine. What is essential medicine or essential drug? एसेंशियल मेडिसिन और ड्रग, एक्चुअली ड्रग कहना सही नहीं होगा क्योंकि ड्रग से कुछ और सजेस्टिव होता है। ड्रग मीन्स एडिक्टिव ड्रग, ओके। तो टर्म ड्रग आर एक्चुअली drug has been dropped now. Now the term medicine are preferred, okay. So what are the essential medicine? Essential medicine means those that satisfy the priority healthcare needs, okay. So it must be available all the time in your healthcare system, okay. एसेंशियल मेडिसिन मतलब हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, एप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, मतलब कि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे स्टोरेज, एप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशंस, ओके, एंड एट द प्राइस, एंड अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए।
So this is all about the essential medicine. So एसेंशियल मेडिसिन पहली बार जो लिस्ट लॉन्च हुआ था वो WHO 1977 में किया था और उसके बाद कई बार रिवाइज हुआ. ओके. इंडिया पहली बार 1996 में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग लॉन्च किया था. ओके. which was later changed in national list of essential medicine. The latest national list of essential medicine is 2022 जिसके अंदर 384 मेडिसिन हैं. ओके. इंक्लूडिंग एफटीसी. द मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन जो होते हैं वो सिंगल कंपाउंड होते हैं, एक ही कंपाउंड होते हैं. ओके. लेकिन कई बार एफडीसी हो सकते हैं. ओके. यूजुअली मोस्टली क्या होता है वो सिंगल कंपाउंड होते हैं, बट कई बार दो या उससे ज़्यादा ड्रग एक साथ कंबाइन होते हैं, उसको एफडीसी बोलते हैं. तो एफडीसी हो सकता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो सकता है. लेकिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन तभी होगा जब उसका कुछ फ़ायदा होगा, लाइक उसके पास थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, सेफ्टी बढ़ जाता है, एडहेरेंस या कंप्लायंस बढ़ जाता है. मतलब एक ड्रग मतलब दवा लिया और उस पर 2-3 ड्रग हो गया तो इससे कंप्लायंस बढ़ता है. तो कंप्लायंस बढ़ता अगर है तो, या फिर कोई ड्रग सिंगल ड्रग देने से रेजिस्टेंस हो रहा है और 2 ड्रग एक साथ दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस ओवरकम हुआ, तो उस केस में हम एफडीसी बनाते हैं. तो एफडीसी के लिए का कुछ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी हम 2 ड्रग को कंबाइन करते हैं. ड्रग सिलेक्शन, जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो बनाते हैं तो उस सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वो सिलेक्शन जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होते रहना चाहिए. समय समय पर जो होता है वो लिस्ट चेंज होना चाहिए, क्योंकि समय समय पे हमारा नीड्स बदलता रहता. आज का प्रिवेलिंग डिजीज कुछ और है, 2 साल के बाद कुछ और हो जाए, 4 साल के बाद कुछ और. अभी हमने देखा कोविड सिचुएशन में जो ड्रग ट्रीटमेंट था, ड्रग का रिक्वायरमेंट अलग हो गया, बिल्कुल रिक्वायरमेंट अलग. तो प्रिवेलिंग डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना, लिस्ट ऑफ मेडिसिन चेंज होते रहता है. सो selection of NLEM is a continuous process and it keep on changing with the time. Thank you. This is all about the introduction of pharmacology.